अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स में लेकर आया हूँ। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स का मतलब ये होता है, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स का मतलब होता है दो पक्षियों के बारे में कहानी है। ये हम इस कहानी के बारे में पूरा पढ़ेंगे और आगे पूरी कहानी को समझने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. One day there was a big storm. There was a thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. ठीक है। One of them came down near cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away. यह कहानी एक जंगल में एक मदर बर्ड और उसके दो नौजवानों के बारे में है। एक लंबे छायादार वृक्ष में एक माँ अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। एक दिन एक भयंकर तूफान आया और इससे सभी पेड़ नीचे गिर गए। एक बड़ी शाखा घोंसला मारा और माँ पक्षी को मार डाला गया था, लेकिन सौभाग्य से बच्चे पक्षियों को जंगल के दूसरी ओर उड़ा दिया गया था और उन्हें बचा लिया गया था। उनमें से एक लुटेरे की गुफा तक पहुंच गया था, दूसरा एक ऋषि के आश्रम के पास उतरा। Day passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. कुछ दिनों के बाद बच्चे पक्षी बड़े हो गए। एक दिन देश का राजा जंगल में पहुंचा। वह शिकार कर रहा था। शिकार के बाद उसने एक हिरण को देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हिरण जंगल में बहुत दूर भाग गया। हिरण को घोड़े पर ले जाते हुए राजा ने अपना रास्ता खो दिया। He rode on for a long time till the come to the other side the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree and stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he'll slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his and rode away as fast as he could. ठीक है बच्चों, इसमें राजा सवारी करता रहा और जंगल के दूसरी ओर पहुंच गया। वह अपने घोड़े से उतर गया और थक गया और गुफा के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो कि जल्दी हो और बाहर के व्यक्ति को लूट ले। उसके सब कुछ जवाहरात घोड़े। राजा यह सुनकर हैरान रह गया और जांच करने के लिए ऊपर देखा। उसने उस पेड़ पर एक बड़ा भूरा पक्षी देखा और गुफा से बेहोश शोर आ रहा था। अचानक वह घोड़े पर चढ़ गया और भाग गया। जल्द ही वह एक आश्रम में पहुंच गया। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसकी छाया में बैठ गया। यहाँ उन्होंने एक नरम आवाज़ सुनी जो उन्हें नमस्कार करती थी और उन्हें अंदर आने और आराम करने के लिए कहा। इसने उसे बर्तन से ठंडा पानी और ऋषि के आने तक आराम से रहने को भी कहा। आश्चर्यचकित राजा ने जांच करने के लिए देखा और फिर से पेड़ में एक समान बड़ा बूढ़ा पक्षी पाया।
Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi ashram. The king tied his horses to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and the rest. The Rishi will be back soon. There some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This one looked like the other bird. Outside the cave, he said to himself loudly. "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He does not talk to me anymore." Just then the Rishi entered the ashram. पक्षी ने राजा को बताया कि वह सही था। पक्षी उसका भाई था, लेकिन लुटेरों से दोस्ती कर ली थी। वो भी उनके जैसे हो गया था। पक्षी ने कहा कि वे और से हेस भाई अब एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तभी ऋषि आश्रम में दाखिल हुए। ऋषि ने राजा को अभिवादन किया और उनसे अनुरोध किया कि वे अंदर आएं और आराम से रहें। उन्होंने अपने भोजन को साझा करने की पेशकश भी की। राजा ने दो पक्षियों के अलग अलग व्यवहारों को समझाया कि एक जैसे दिखते हैं। उन्होंने कहा, जंगल में ऐसे आश्चर्य से भरा था। "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while. Then you can share my food." The king told the Rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. "The forest is full." Surprised, he said. The holy man smiled and said, "After all, one is know by the company one keeps. That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talk about robbing people. This one has repeated what he was always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I tell you more about this place and these birds." ऋषि मुस्कुराए और कंपनी के प्रभाव को समझाते रहे। एक पक्षी जो लुटेरों को सुनता था अपने शब्दों को दोहरा रहा था, और जो ऋषि के साथ था वह धीरे धीरे बोल रहा था और लोगों का अभिवादन कर रहा था। ऋषि ने राजा को आराम करने के लिए कहा और उसे पक्षियों और जगह के बारे में और बताने की पेशकश की। बेटा, यही आपकी कहानी थी और आपको, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि दो पक्षियों के बारे में ये कहानी थी और एक राजा भी थे इसमें, जो आपको सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैं आपको समझा दिया हूँ। इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।